Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this true. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous video we were started a new topic. The name is name reaction. Okay, in where we study 6 different types of name reaction. First one is Wittig reaction, second one is Hamer-Wadsworth-Emmons reaction. Okay, third one is Julia-olefinition, fourth one is Peterson-olefinition, and sixth one is Rembrandt-Bacon reaction. Okay, and sixth one is Corey-Winter reaction. Where we study all this name reaction and their short trick. Okay, now today I am going to discuss about all the concept of Wittig reaction. Okay, so now let's get continue our lecture. If you want to see my previous video, then you may go to the playlist section of this channel where I have organized all the particular video for this particular topic. Okay, so now let's get continue our lecture. So our first name reaction is Wittig reaction. And what of Wittig reaction? It gives alkene product, I mean formation of carbon-carbon double bond. Okay, so what is the reaction, what is their substrate, and what is their product, and what is the reagent? This concept all are we study in a previous video. Okay, so what is the substrate? Substrate is aldehyde or ketone. Okay, here aldehyde or ketone, any one of these. Okay, and reagent is Wittig reagent. Okay, and what is Wittig reagent? Triphenyl phosphonium halide, PH3 P double bond C, here X and Y. Okay, this is a Wittig reaction. This is a Wittig reagent. Wittig reagent. Okay, okay, and what is the product? The product is E or Z, both alkene. Okay, here what is the concept? This PPH3 and oxygen is leave, and this carbon is formation of double bond. Okay, so R is here, H is here, and this is double bond, and C, and here in X and Y. Okay, this is X, this is Z. E or Z, both alkene is form. Okay, this is our product. Okay, अब हमें सबस्ट्रेट भी पता चल गया, रिएजेंट भी पता चल गया, और प्रोडक्ट भी पता चल गया. अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये ई और जेड एल्किन कब बनेगा, कब ई एल्किन बनेगा और कब जेड एल्किन बनेगा. ये हमारा क्या है, ये जो रिएजेंट इसका क्या नाम है? ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड है. ओके, अब जो ये ई और जेड प्रोडक्ट बन रहे हैं आपस, ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन हैलाइड. ये जो हैलाइड है, जो हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा. और किस पे डिपेंड करेगा? इट आल्सो डिपेंड ऑन रिएक्शन कंडीशन. रिएक्शन कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा ना, रिएक्शन कंडीशन. ओके, अब देखिए हैलाइड जो होगा वो कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के हैलाइड होंगे. फर्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हैलाइड. ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड जो हम लोग ले रहे हैं, ये क्या होगा? 3 तरफ के. अब फॉस्फोनियम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है? ब्रेक होकर क्या रहता है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है. ओके,
तो 3 तरह के क्या होंगे, ये लाइट होंगे। फर्स्ट जो हमारा होगा, फर्स्ट ए जिसको हम लोग बोलेंगे स्टेबलाइज्ड ये लाइट। ओके, ये क्या देगा हमें, इट फेवर ई एल्किन। ओके, ये हमें क्या देगा, ई एल्किन देगा, है ना। और यहाँ क्या होगा, स्ट्रांगली, यहाँ जो एक्स और वाई होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, स्ट्रांगली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब कंजुगेशन तो सभी जानते हैं, चलिए इससे मैं बताता हूँ। देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं, PH3 डबल बॉन्ड C और यहाँ पास X और Y। अब X और Y क्या होगा, X और Y की जगह में हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पास हमारा क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास क्या आ रहा है, फास्फोरस में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रांगली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये निगेटिव चार्ज को ऐसा ग्रुप यहाँ पास लेंगे जो क्या करे, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे। अब निगेटिव चार्ज कार्बन आयन, कार्बन आयन को कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है। तो निगेटिव चार्ज को कौन सा ग्रुप स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस दिस कार्बोएनायन। ओके, तो एक्स और वाई की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेंगे। जैसे एस्टर हो गया, CRRO हो गया, है ना, SO2PH हो गया, ये सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे। कार्बोनिल हो गया, एक्स और वाई की जगह में ना C+O हो गया या फिर साइनाइड हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे। X and Y, any one position this group is must be present. ओके, ये जो एक्स और वाई है, यहाँ पास एक्स और वाई जो हम लोग ले रहे हैं, CRR हो गया, एस्टर हो गया, है ना, सल्फेट हो गया, फिर कार्बोनिल हो गया, फिर साइनाइड हो गया, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो एक्स या तो फिर एक्स पोजीशन पे होना चाहिए या फिर वाई, कोई भी एक पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इसमें से कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो एल्किन बनेगा वो क्या बनेगा, ई एल्किन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये किसको फेवर कर रहे हैं, ई एल्किन को फेवर कर रहे हैं। अब क्यों ई एल्किन को फेवर कर रहे हैं, ई क्यों बन रहा है, जेड क्यों नहीं बन रहा है, इसे जब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आगे तब इसको आप लोग को बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया स्टेबलाइज लाइट। अब सेकेंड देखते हैं, चलिए। ओके, ये हम लोगों ने समझ लिया स्टेबलाइज लाइट। अब भी है हमारा सेमी स्टेबलाइज लाइट। ओके, या फिर इसको हम लोग मॉडरेट लाइट भी बोलते हैं, है ना, मतलब मध्यम वर्ग का, बीच का। ओके, यह किसको फेवर करेगा, फेवर जेड एल्किन, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जेड एल्किन होगा। इसमें किस तरह के जो है सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, माइल्डली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब माइल्डली कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, जो कंजुगेशन में जो स्ट्रॉन्ग कंजुगेशन ना दिखाए, है ना, वीक कंजुगेशन दिखाए। यहाँ पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी कर सकते हो ना। अब एक्स और वाई की पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आए, एक्स और वाई की जगह पे
अगर फिनाइल रहा या फिर एलाइल ग्रुप रहा, है ना। अब एलाइल तो सभी लोग जानते ही होंगे, ओके। फिनाइल ग्रुप रहा या फिर कोई एलाइल ग्रुप रहा, एक्स एंड वाई, एनी वन पोजीशन दिस ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, ओके। कोई भी एक पोजीशन में क्या होगा, ये जो ग्रुप होगा प्रेजेंट होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे, इसको सेमी स्टेबलाइज्ड लाइट बोलेंगे। और क्या होगा, इससे कौन सा एल्किन बनेगा, जेड एल्किन बनेगा, ओके। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जेड एल्किन क्यों बनेगा, इससे भी मैं आगे मैकेनिज्म में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि जेड एल्किन बन रहा है ना। ये तो आप लोग के एक आइडिया मिलेगा इससे आप लोगों को, ओके। अब चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो आएगा वो आएगा नॉन स्टेबलाइज्ड हैलाइड। सी है हमारा नॉन स्टेबलाइज्ड हैलाइड, हाँ ना। ये किसको फेवर करेगा, इट फेवर, ये भी क्या करेगा, जेड एल्किन को बनेगा। मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा क्या होगा हमारा, कौन सा एल्किन बनेगा, जेड एल्किन बनेगा, ओके। और इसमें कैसा सब्स्टिट्यूएंट होगा, नॉन कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट, जो क्या हो, कंजुगेशन में इन्वॉल्व ही ना हो, नॉन कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें कंजुगेशन इन्वॉल्व ना हो, ओके। नॉन कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो गया इट फेवर जेड एल्किन नॉन कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट, है ना। अब नॉन कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूएंट कौन से होंगे, जैसे देखिए पी, ये हमारा क्या हो गया, स्टेबलाइज्ड, है ना। ये क्या है हमारा, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम हैलाइड है, ओके। ये एक्स हो गया, वाई हो गया, है ना। यहाँ पास निगेटिव चार्ज, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए एक्स और वाई की जगह पे मैं कौन सा ग्रुप लूँ, एक्स और वाई की जगह पे मैं, अगर एक्स वाई की जगह में क्या रहा, एल्काइल ग्रुप रहा, है ना। एल्काइल में क्या होगा, मिथाइल, इथाइल, टर्सीब्यूटाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, ये सब ग्रुप आ जाएंगे, है ना, एल्काइल में, ओके, है ना। एक्स एंड वाई, एनी वन पोजीशन दिस ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट, ओके। कोई भी एक पोजीशन पे यह ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो P हो गया और PH3 बॉन्ड C, यहाँ पास क्या हो जाएगा, मिथाइल ले लो, यहाँ पास हाइड्रोजन भी ले सकते हो, या फिर PH3C, यहाँ पर मिथाइल ले लो, यहाँ पर इथाइल ले लो, ये भी हो सकता है ना। मतलब एक सवाल, या तो कोई एक पोजीशन पे या फिर दोनों पोजीशन पे हो, उससे हमें मतलब नहीं है। तो एक इसको फेवर करेगा, जेड एल्किन को फेवर करेगा। अब यहीं पर क्या है, हमारा एक मॉडिफिकेशन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोसर मॉडिफिकेशन बोलते हैं। ये क्या होगा, जब हम लोग मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करेंगे तो मैकेनिज्म में हमारा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्साफॉस्फेटिन बनेगा, ऑक्साफॉस्फेटेन, है ना। इस ऑक्साफॉस्फेटेन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ या फिर फिनाइल लिथियम के साथ, कोई भी क्या होगा बेस। तो ये हमें क्या देगा, जेड एल्किन नहीं देगा, ये क्या देगा हमें, ई एल्किन देगा, है ना। तो ये मॉडिफिकेशन को भी मैं आगे बताऊंगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या फेवर करेगा, ये ई एल्किन फेवर करता है, जेड एल्किन क्यों फेवर नहीं करता, ये भी मैं आगे इसको बताऊंगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, जो है स्टेबलाइज्ड हैलाइड आइडेंटिफाई कर लिया, कौन कौन सा स्टेबलाइज्ड हैलाइड होगा, कौन सा नॉन स्टेबलाइज्ड हैलाइड होगा और कौन सा सेमी स्टेबलाइज्ड हैलाइड होगा, ओके। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में ही तो हमें समझ में आएगा कि ई क्यों बढ़ रहा है, जेड क्यों बढ़ रहा है। तो चलिए अब मैकेनिज्म को समझते हैं। है ना। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सिंथेसिस, इसका जो है व्हिटिंग रिएजेंट का सिंथेसिस कैसे करेंगे, है ना। तो सिंथेसिस जो है एग्जाम में नहीं पूछता है ना, तो सिंथेसिस को मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। आपको ज़रूरत भी नहीं है सिंथेसिस को जानने का, बस आप सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ये सबको ध्यान में रखो, हाँ ना। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को भी ध्यान में नहीं रख सकते, तो जो ट्रिक बताया हूँ उसको बस
ध्यान में रखो। ओके, अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। ओके, अब बात आती है मैकेनिज्म की। अब चलो हम लोग मजाते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मज़ा आएगा। ओके, सबसे पहले समझते हैं नॉन स्टेबलाइज्ड ईएलाइट का। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, स्लोसलर मॉडिफिकेशन है, तो उसको भी समझ लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, नॉन स्टेबलाइज्ड ईएलाइट को। नॉन स्टेबलाइज्ड ईएलाइट, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रहा हो तो देख लेना यार, आप लोग सुधार लेना। स्टेबलाइज्ड, ओके। इट फेवर क्या बनाया गया है, जेड एल्किन। ओके, तो चलिए मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड पी, और यहाँ पास क्या होगा, पी एच पी एच पी एच, PPH3 तो रहेगा ना, और यहाँ पास कार्बन, और यहाँ पास R, और ये H। ओके, अब यहाँ पास कौन सा ग्रुप होगा, X और Y, है ना। वो आप लोग जान ही गए हो, X और Y की जगह पे कौन सा ग्रुप होगा। ओके, R ले रहा हूँ मतलब क्या है, एल्किल है। अब एल्किल किस में आता है, नॉन स्टेबलाइज्ड ईएलाइट में आता है। प्लस कौन सा लेंगे हम लोग, एल्डिहाइड ले लेता हूँ। जैसे आप लोग कीटोन भी ले सकते हो, एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी ले सकते हो। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो जो ये जो फास्फोनियम ईएलाइड है और एल्डिहाइड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर क्यों रखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर रखने से हमें क्या होगा, मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा, जिससे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जेड एल्किन क्यों फेवर कर रहा है ना। अब परपेंडिकुलर क्यों रखेंगे, ओके, एल्डिहाइड एंड फॉस्फोनियम ईएलाइट इज परपेंडिकुलर। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर का साइन, ओके, टू ईच अदर। ओके, परपेंडिकुलर मतलब समझ रहे हो, एक को क्या करो आप लोग, वर्टिकल दिखा दो, और एक को क्या रखो, हॉरिजॉन्टल रखो, है ना। अगर जैसे देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को मैं क्या कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रख रहा हूँ, तो ये जो फॉस्फोनियम ईएलाइड है इसको क्या करूँगा, वर्टिकल रखूँगा, तभी ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, तो अब क्या होगा, सिंपल सा रिएक्शन होगा। इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पास क्या है, निगेटिव चार्ज, यहाँ पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पास इस कार्बन में क्या है, पाई बॉन्ड है। तो देखिए ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, यहाँ आएगा, और देखिए फास्फोरस के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, और ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल से क्या होगा, ये इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना, ये हमारा होगा। तो अगर मैं आप लोग को ट्रांजिशन स्टेट को दिखाऊं तो देखिए ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा हमारा। ओके, समझते जाइए ना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पास O हो गया, यहाँ पास H, यहाँ पास R डैश, और यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन। ओके, ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अब ट्राइफिनाइल फॉस्फेन को कहाँ रखा हूँ मैं, वर्टिकल। ये क्या है, पीछे में है ना, ये क्या है, बैक साइड में। अब ट्राइफिनाइल फॉस्फेन अगर आगे में मैं दिखाऊं तो देखिए कैसा बनेगा, ये हमारा P, यहाँ पास PH3 को दिखा दे रहा हूँ ना, साथ ही में तो रहेगा PPH3, PPH3। ओके, हमारा C, और ये हमारा R, और ये हमारा H। ओके, तो एक ऑक्सीजन किसके साथ ज्वाइन हुआ है, फास्फोरस के साथ। तो यहाँ पास क्या करो, ऑक्सीजन को दिखा दो, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट बता रहा हूँ ना। ओके, और ये जो कार्बन है, ये कार्बन है किसके साथ हुआ है, इस कार्बन के साथ ज्वाइन हुआ है, तो ये इस कार्बन के साथ ज्वाइन हुआ है, और यहाँ पास जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ है, और यहाँ पास का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है ना।
अब ये एक ट्रांजिशन हो स्टेट हो गया। देखिए हम लोगों ने क्या किया, अब ये आर और इस एच को देखिए, इसके पोजीशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं। आर जैसे मैं यहाँ पर रखा हूँ तो प्लस एक और ट्रांजिशन बड़ा स्टेट बनाता हूँ जिसमें क्या रखूँगा, आर को इसके अपोजिट डायरेक्शन में रखूँगा। अब वैसा क्यों रख रहा हूँ वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ। अब आर को मैं इधर रख दे रहा हूँ, एच को यहाँ पर रख रहा हूँ। ओके, यहाँ बस भी क्या करो, ट्रांजिशन स्टेट को दिखा दो। ये बॉन्ड का ब्रेकेज है ना, जो डॉट डॉट से शो कर रहा हूँ मैं, ये क्या है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड को मैं दिखा रहा हूँ, जो बॉन्ड ब्रेकेज हुआ है और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारा सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो आप लोग का जवाब क्या होगा, बताइए आप लोग का जवाब क्या होगा। देखिए अगर फर्स्ट वाले ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या है, PPS3। अब PPS3 क्या है, बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पास क्या होगा, रिपल्सन होगा, लेकिन रिपल्सन नेग्लिजिबल होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, स्मॉल एटम है। लेकिन अब यहाँ पास बात करें, देखिए ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, अब यहाँ पास रिपल्सन हो रहा है तो क्या होगा, ये लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हमारा बनेगा। ओके, अब लेकिन अब हम लोग यहाँ पास बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है और ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है, हाइड्रोजन तो स्मॉल एटम है ना, तो यहाँ पास नो रिपल्सन। यहाँ पर देखिए ये है, ये यहाँ पर जो है आर था, आर ग्रुप को कहाँ कर दिया हम लोगों ने, इस साइड रख दिए, तो यहाँ पर जो रिपल्सन हो रहा था आर के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रिपल्सन नहीं हो रहा है। अब रिपल्सन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से क्या है, ये हमारा मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, ये क्या है हमारा, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो हम लोग कोई भी रिएक्शन कैरीड आउट कराते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को देखते हैं और इंटरमीडिएट देखते हैं, है ना। दोनों अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होना चाहिए। तो ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, हमारा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसमें एल्कीन और जो एल्कीन है वो क्या है, कीप अपार्ट है, बोथ आर ग्रुप इज कीप अपार्ट, एक दूसरे से क्या है, दूर है, हाँ, जिसकी वजह से रिपल्सन नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या बन रहा है, वो हमारा मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या करो, इसे रोटेट कर लो, हाँ। अब जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा क्या बना, ऑक्सा फॉस्फेटेन, यही तो बना है ना, ऑक्सा फॉस्फेटेन बन गया हमारा। अब क्या करो, ये जो PPS3 है या फिर RCR, उसको क्या करो, रोटेट कर दो, है ना। रोटेट करेंगे तभी तो हम लोग क्या करेंगे, C90 बता पाएंगे, है ना। तो देखिए ये हमारा जो ब्लू वाला, देखिए ब्लू वाला मार्कर है वो क्या है, हमारा O है ना, ये का एल्डिहाइड है, और ये हमारा क्या है, PPS3 वाला ग्रुप है। तो देखिए अब मैं PPS3 वाला ग्रुप को क्या करूँगा, रोटेट करूँगा, ये ऐसे क्या कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा, तब मुझे क्या बनेगा, जो है E और Z बता दे आप लोग को बनेगा। तो देखिए यहाँ पास मैं आप लोग को बता रहा हूँ, है ना। अब रोटेट करने के बाद यहाँ पास देखिए ना, वहाँ से रोटेट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा R ड्रेस हो गया। ओके, अब PPS3 कहाँ आएगा, PPS3 यहाँ आ जाएगा, ये अब रोटेट किए तो PPS3 में देखिए अगर रोटेट करेंगे तो R कहाँ होगा, डाउन साइड में आएगा, तो R यहाँ दिखा दूंगा, हाइड्रोजन को यहाँ, ये बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, ये हमारा क्या है, ऑक्साफॉस्फेटीन बन गया। ऑक्साफॉस्फेटीन। ओके, अब इसमें बताइए, ये आर और आर, ये आर डैश और आर का पोजीशन देखिए, आर डैश और आर का पोजीशन देखिए कहाँ है, दोनों डाउन डाउन में है ना। देखिए अगर यहाँ पर से हम लोग आइडेंटिफाई करें तो आर और आर डैश क्या है, दोनों डाउन डाउन में, और हाइड्रोजन को देखें तो क्या है, दोनों अप साइड में है, मतलब सेम साइड में है ना। तो मैं इसे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री के थ्रू बताऊँ तो देखिए O हो गया, PPS3 हो गया, है ना। जैसे R को मैं क्या कर रहा हूँ,
सॉलिड लाइन से शो कर दे रहा हूँ, ओके। और इस आर को डॉटेड लाइन से, आर डैश को, यहाँ पास भी क्या करूँ, हाइड्रोजन को सॉलिड लाइन से, और ये आर को मैं डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूँ, ओके। अब क्या होगा, सिंपल सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखो डबल बॉन्ड, ओके। हाइड्रोजन हाइड्रोजन आर डैश और आर, ओके। प्लस बाहर क्या निकला हमारे पास, PH3 डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया हमारा, बाहर निकला। अब इस प्रोडक्ट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं EZ बताओ तो क्या होगा। अब दोनों देखिए दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड में है ना। अब दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो पीरियोडिटी देंगे तो 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे। तो देखिए 2 2 क्या आ रहा है, सेम साइड में आ रहा है, तो ये क्या बना हमारा जेड एल्किन ही तो बना। अरे यार इसको रोटेट कर लो ना, ये लो ऐसा करके रोटेट कर लो, आर डैश आर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब नंबरिंग कर लो, 1 2 1 2 2 2 सेम साइड में, 1 1 जो पीरियोडिक सेम साइड में, तो जो जब पीरियोडिक सेम साइड में रहता है तो हमारा कौन सा बनता है, जेड एल्किन ही तो बनता है, ओके। समझिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोगों ने यहाँ पर से परपेंडिकुलर क्यों रखा है, क्योंकि हम ट्रांजिशन स्टेट को हमें क्या बनाना है, मोस्ट स्टेबल बनाना है, इसीलिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर रखा है, ओके। अब मोस्ट स्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर और आर डैश को एक दूसरे के दूर रखेंगे। अब देखिए जो हमारा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, और जो अनस्टेबल लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनाया क्या है हमारा, काइनेटिक प्रोडक्ट है, ओके। तो नॉन स्टेबलाइज्ड लाइट से हमें क्या मिलेगा, जेड एल्किन मिलेगा। अब चलिए यहीं पास हम लोग स्लोसलर मॉडिफिकेशन को समझते हैं, आखिर उसमें ई एल्किन क्यों बन जाता है ना। स्लोसलर मॉडिफिकेशन में उसमें भी हम लोग क्या ले रहे हैं, एल्काइल ग्रुप ही ले रहे हैं, है ना, लेकिन उसमें ई क्यों बन जाता है उसको समझते हैं। है ना, तो मैकेनिज्म आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ट्रिक को ध्यान में रखो, ओके। मैकेनिज्म तो सिर्फ मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में मैकेनिज्म बनाते मत बैठे रहना, एग्जाम में आपको सीधा ट्रिक अप्लाई करना है और रिएक्शन करा देना है ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं इसी में स्लोसलर मॉडिफिकेशन को। मॉडिफिकेशन इसने क्या किया, इसी विटिक रिएजेंट को ही क्या किया, इसने मॉडिफाइड करके बना दिया, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रहा था, ई एल्किन मिल रहा था, है ना। अगर हम लोग नॉन स्टेबलाइज्ड एलाइड ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जेड एल्किन मिल रहा है, लेकिन सोशलर मॉडिफिकेशन में क्या मिल रहा है, हमें ई एल्किन मिल रहा है। आखिर क्यों ई एल्किन मिल रहा है, देखिए सबसे पहले हमारा इंटरमीडिएट क्या बना था, हमारा इंटरमीडिएट क्या था, PH3O और जो आर और आर ग्रुप थे वो क्या थे, एक दूसरे के सीन थे, है ना। तो चलिए मैं सीन दिखा दूँ, जैसे इसमें मिथाइल ले लेता हूँ और इसमें आर ले लेता हूँ, ओके। और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन। जो इंटरमीडिएट बना था ऑक्साफॉस्फेटिन, उसमें दोनों सीन था ना, देख लो मैग्नीशियम में रिवर्स करके देख लो, मैग्नीशियम में दोनों सीन्स था, है ना। तो यहीं पास से क्या होगा, हमारा मेट जो है वो खेन होगा। देखिए हम लोग यहाँ तक तो सभी में बनाएंगे ना, सभी रिएक्शन में हम लोग, चाहे स्टेबलाइज्ड एलाइड हो कि नॉन स्टेबलाइज्ड एलाइड हो, सभी में हम लोग यहाँ से बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे इसी। उसके बाद फिर आगे का जो है वो, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, ई और जेड में चेंजेस आएगा। ऑक्साफॉस्फेटेन, अब इसने क्या किया, यहाँ पास बेस ले लिया, बेस में जैसे ब्यूटाइल लिथियम ले लो, BuLi पॉजिटिव, या फिर फिनाइल लिथियम ले लो, है ना, एन ब्यूटाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, ये क्या है हमारा बेस है, ओके। अब बेस है तो अब बताइए, जब बेस है तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट यहाँ से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करे, सेकेंड की इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करे, हाँ ना। अब आप लोग बताइए कि ये कौन से हाइड्रोजन को जो है अब्स्ट्रैक्ट करेगा, बताइए।
कौन सा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, स्टेबिलिटी देखना ना आप लोग, ऐसा नहीं कि कोई भी हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करा दीजिए। अगर देखिए अगर वो इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है बेस, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को ये R ग्रुप, R हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा, इस कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज कर देगा, अनस्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ से क्या करेगा, वो प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पास निगेटिव चार्ज आता है ना, तो यहाँ पास क्या है, देखिए इस फास्फोरस के पास क्या है, फास्फोरस के पास क्या रहता है बताइए, क्या रहता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अब ये क्या करेगा, तुरंत कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना, तुरंत क्या करेगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन को डाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा। तो ब्यूटाइल लिथियम जो क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, अब यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कराइए, ये हमारा P हो गया, यहाँ पर तीनों पोजीशन में PPH3 ग्रुप है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, O, यहाँ पर C। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गया, तो अब हम लोग मिथाइल का क्या है करेंगे, अब मिथाइल का जो अबाउ द प्लेन था वो क्या होगा, ऑन द प्लेन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पास तो निगेटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पास तो हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं डिफाइन कर सकते, है ना। अब यहाँ पास क्या रहेगा, R जो है अबाउ था और हाइड्रोजन जो है वो क्या था, बिलो था। ओके, अब उसके बाद हम लोग फिर से क्या लेंगे, कोई प्रोटॉन डोनर ले लेते हैं। ओके, प्रोटॉन डोनर, जैसे मैं ले लूँ टर्सरीब्यूटाइरिक एसिड ले लेता हूँ। ओके, TbOH, है ना। तो अब क्या करेगा, ये हमारा क्या प्रोटॉन डोनर है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, Li जो है पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज के साथ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो लिथियम है वो क्या किया है, आके ज्वाइन हुआ है ना। अब देखिए ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद जब मैं, अब यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद जब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊंगा तो आप लोग मुझे बताइए मैं हाइड्रोजन को कहाँ रखूँ। मैं 2 प्रोडक्ट आप लोग को बना के दे रहा हूँ। ओके, आप लोग बताइए कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगा। टेक्स्ट में मैं मिथाइल को अव्वल रखता हूँ, हाइड्रोजन को बिलो रखता हूँ, यहाँ पास R ग्रुप और यहाँ पास हाइड्रोजन प्लस एक और बना देता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, मैं बिलो में हाइड्रोजन को रखता हूँ और अबव में, बिलो में मिथाइल को रखता हूँ, अबव में हाइड्रोजन को, C। ये 2 ही पॉसिबिलिटी तो होगा ना हमारे पास, यहाँ अबव में R को रखता हूँ और अबव में हाइड्रोजन को, 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, है ना। अब मुझे यहाँ पास स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना है ना, यहाँ पास क्या था, निगेटिव चार्ज था, तो ये क्या हो गया, ऑन द प्लेन में आ गया। लेकिन अब जब इसने प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पास तो मुझे स्टीरियोकेमिस्ट्री बताना ही है। अब बताइए A और B में कौन सा जो है मोस्ट स्टेबल जो है ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है या फिर इंटरमीडिएट बन रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट मोस्ट स्टेबल है बताइए मुझे आप लोग। पोजीशन देखिए, यहाँ क्या है, मिथाइल और ये R ग्रुप, दोनों क्या है एक दूसरे के, ये भी अबव में है ये भी अबव में, मतलब क्या है, ये सीन है। लेकिन यहाँ पर देखिए मिथाइल और R इसमें अबव में है ना, मैं यहाँ पास भी चेंज कर दिया हूँ, सॉरी, यहाँ तो R अबव में है ना, और यहाँ पास हाइड्रोजन जो है वो बिलो में, यहाँ मेरे को चेंज नहीं करना था, सिर्फ यहाँ चेंज करना था। ओके, अब यहाँ पर देखिए मिथाइल और R ग्रुप को देखिए, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी हो गए, है ना। मिथाइल और R ग्रुप कहाँ है, अबव, मिथाइल ग्रुप कहाँ है, बिलो, तो दोनों एक दूसरे के एंटी तो हो गए ना। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, रिपल्सन, यहाँ पास क्या हो रहा है, नो रिपल्सन। ओके, अब नो रिपल्सन है तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, हमारा मोस्ट स्टेबल होगा। अब उसी ट्रांजिशन स्टेट को मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ आप लोग को। अब बॉन्ड का हमें क्या करना है, ब्रेकेज तो करना है ना, मिथाइल हाइड्रोजन। ओके, ये तो हमारा क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या होगा, रिपल्सन होगा R, और ये हमारा हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पास पीएच जो है ग्रुप प्रेजेंट है ना। अब क्या करेंगे, बॉन्ड का ब्रेकेज करा दीजिए, ये
सिंपल सा बॉन्ड का ब्रेकेज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ते हैं, सबको पता ही होगा। ओके, तो क्या बना हमारे पास, देखिए यहाँ पर सी है, सी डबल बॉन्ड सी। ओके, मिथाइल कहाँ है, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, यहाँ दिखा देता हूँ। और आर और हाइड्रोजन कहाँ है, अबो में है, तो यहाँ पास आर हो गया, यहाँ पास हाइड्रोजन हो गया। अब चलिए नंबरिंग कीजिए, यहाँ पास पीरियोडिक दीजिए, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट जो पीरियोडिक है एक दूसरे के क्या है, एंटी है, तो एंटी है तो ये क्या होगा, ई एल्किन होगा, है ना। तो इसीलिए जो सोशलर मॉडिफिकेशन में उसने जब बेस लिया, तो इस बेस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पास जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पास क्या हो रहा है, एक प्रकार से आइसोमराइजेशन हो जा रहा है ना, किसका, स्टीरियोकेमिस्ट्री को बोले, या फिर ये है ना मिथाइल और हाइड्रोजन का, यहाँ पास क्या हो जा रहा है आइसोमराइजेशन हो जा रहा है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सब क्या हो गया है, कार्बोकेटायन की आ जाने की वजह से यहाँ पर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बता सकते, है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लेन में ही रहेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन जब H+ को अपटेक करेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री को दिखाएंगे। ओके, तो इसीलिए जो क्या करेगा, ई एल्किन बनाएगा, है ना। तो इतना समझ के अब चलिए हम लोग देखते हैं स्टेबलाइज्ड एलाइड। स्टेबलाइज्ड एलाइड क्यों ई एल्किन बना रहा है, जेड एल्किन क्यों नहीं बना रहा है, उसे समझते हैं। है ना, तो हमें क्यों मिल रहा है जो ई और जेड एल्किन जो मिल रहा है वो किस वजह से मिल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी की वजह से। जो इंटरमीडिएट बन रहा है ऑक्साफॉस्फेटिन, है ना, उसके वजह से हमें जो है ई और जेड एल्किन मिल रहा है। अब बात करते हैं स्टेबलाइज्ड एलाइड की। इट फेवर कौन सा एल्किन को फेवर करता है, ई एल्किन, हाँ ई एल्किन बनाएगा। अब स्टेबलाइज्ड एलाइड में कैसा ग्रुप लेते थे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लेते थे, किसके साथ, फॉस्फेनियम एलाइड के साथ। PPH3 हो गया। ओके, यहाँ पास हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास हमारा नेगेटिव चार्ज, यही तो रहता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव ना दिखा के क्या करो, डबल बॉन्ड कर दो, वो सेम ही बात है ना। प्लस क्या लेंगे यहाँ पर, सब एल्डिहाइड ले लीजिए, डबल बॉन्ड O और R और ये H, ये हमारा हो गया। अब सिंपल क्या है, इसमें भी क्या बनेगा, वही जो हम लोगों ने ऑक्साफॉस्फेटिन नॉन स्टेबलाइज्ड एलाइड के बनाया था, वही क्या बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ओके, तो यहाँ भी क्या करो, वही बना दो। तो दो पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट सिस बने और सेकेंड ट्रांस बने। तो सबसे पहले क्या करो, सिस बना दो, है ना, PPH3OCC। सबसे पहले क्या करो, सिस कर दो। ये CO2ET है, CO2ET ये क्या है, एस्टर ग्रुप है, जो क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, और R ग्रुप को दोनों को क्या करो, अब दिखा दो। अब हाइड्रोजन जो क्या होगा, बिलो हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, सिस। अब एक और प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें क्या होगा, POPH3, एक दूसरे को क्या करो, एंटी दिखाओ, CO2ET। बिलो में क्या कर दो, R कर दो। ओके,
इसमें भी यही पॉसिबिलिटी है कि क्या बने, हमारे पास 2 ट्रांजिशन स्टेट हो। ओके, अब आप लोग देख रहे होगे मैंने साइन को रिवर्सिबल बताया, तो रिवर्सिबल क्यों बताया वो मैं आप लोग को बताता हूँ सबसे पहले, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, CO2 ET और R ग्रुप है ना, ये क्या है, दोनों सीन है, तो सीन की वजह से क्या करेंगे, रिपल्सन तो करेंगे, सीन है तो, है ना, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्सन। लेकिन यहाँ पर क्या है, एंटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिपल्सन। ओके, फर्स्ट ये हो गया। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, अगर मैं इसका बॉन्ड ब्रेकेज करता हूँ, देखिए ये और ये, है ना, तो निगेटिव चार्ज कहाँ पास आ रहा है, यहाँ पास आएगा निगेटिव चार्ज। अरे जब मैं बॉन्ड ब्रेकेज करूँगा तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास निगेटिव चार्ज ही तो आएगा। अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेकेज कर दूँ तो यहाँ पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास निगेटिव चार्ज, यही तो आएगा ना। तो ये निगेटिव चार्ज को क्या हो रहा है, बॉन्ड हम लोग गलत वैसे ब्रेक कर रहे हैं ना, हाँ गलत ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। हमें डबल बॉन्ड किस में बनाना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना है ना। तो कैसे ब्रेकेज करेंगे बॉन्ड का ब्रेकेज, ये यहाँ जाएगा और ये जो है वो यहाँ आएगा, ऐसा बॉन्ड का ब्रेकेज करेंगे, तभी तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C बनेगा ना। ओके, सेम पॉसिबिलिटी इसमें ही होगा, इसमें भी क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। ओके, अब देखिए जब हम लोग बॉन्ड का ब्रेकेज करेंगे यहाँ पास, है ना, यहाँ जो देखिए यहाँ पास जो एन आयन बन रहा है ना। ओके, इसको समझिए ध्यान से, यहाँ पर जो एन आयन बन रहा है ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो ये क्या कर रहा है, एन आयन को स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस यहाँ पास क्या है, फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के फास्फोरस के पास क्या है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना। तो ये क्या करेगा, तो बॉन्ड का ब्रेकेज क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज जो होगा वो इस तरह से, हाँ जैसे हम लोग बोल रहे थे ये वाला ब्रेकेज, है ना, ये और ये। तो बॉन्ड का ब्रेकेज क्या होगा, इस तरह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो जा रहा है। तो जो रिएक्शन है प्लस ये क्या है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और आर के बीच, तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो इसीलिए क्या होगा, रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा, और रिवर्सिबल होके फिर से यही प्रोडक्ट जनरेट कर देगा वो, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, है ना, ब्रेकेज होगा और फिर से देखिए ये क्या बनेगा, PPH3COET ये बना लेगा और C डबल बॉन्ड ORH और एल्डिहाइड फिर से बन जाएगा वापस। क्यों, क्योंकि अनस्टेबल फर्स्ट इंटरमीडिएट। देखिए सबसे पहले हम लोग कोई भी रिएक्शन कराते हैं, जैसे A और B का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, और जो C हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना। अगर ये स्टेबल नहीं रहा, A प्लस B में 2 रिएक्शन करा रहा हूँ, C प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, है ना। अगर ये प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा तो रिवर्सिबल बनने का, रिवर्सिबल होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, अनस्टेबल प्रोडक्ट है ना। प्लस यहाँ पास क्या हो रहा है, ये कार्बन आयन जो है स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सीन वाला से नहीं बनाएंगे। ओके, जैसे हम लोग बेस में स्टडी करते हैं ना, अगर कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो जो बेस बनता है ना, जिसे हम लोग कॉन्जुगेटेड बेस बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनना चाहिए, तभी क्या करेगा, वो रिवर्सिबल नहीं करता, है ना। नहीं तो क्या होता है, वो फिर से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करके रिवर्सिबल रिएक्शन करा देता है। अब बात करते हैं यहाँ पास इस वाले में, देखिए इस वाले रिएक्शन में यहाँ पास क्या है, दोनों एक दूसरे के एंटी है, तो नो रिएक्शन और स्टेबल है। ओके, अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, मतलब अब यहाँ पास क्या होगा, जो यहाँ पर जो कार्बन आयन बनेगा वो क्या बनेगा, नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा, ड्यू टू स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट की वजह से। अब ये क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। अब रिवर्सिबल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एन आयन को यहाँ दिखाएंगे और
एन आयन जो है यहाँ पास आएगा निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पास आएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, PPH3 डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड C, पॉजिटिव निगेटिव डबल बॉन्ड बना लेगा ना। अब देखिए COET और R क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो एक दूसरे के अपोजिट कर दीजिए, CO2ET और R, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन। पीरियडिटी दीजिए फर्स्ट सेकेंड, अरे यहाँ पास गलत दे दिए, R तो हाइड्रोजन से बड़ा है तो फर्स्ट सेकेंड। देखिए सेकेंड एक दूसरे के एंटी, तो हमारा क्या बना, ई एल्किन बन गया। ओके, यहाँ पास को ध्यान से समझिए, है ना, ये जो है यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल हो जा रहा है, इसीलिए रिएक्शन रिवर्सिबल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल नहीं होगा। ओके, तो ये जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्टेबलाइज्ड हैलाइड की। ओके, तो समझ गए, नॉन स्टेबलाइज्ड रहेगा तो जेड एल्किन, सेमी स्टेबलाइज्ड रहेगा तो जेड एल्किन, स्टेबलाइज्ड हैलाइड रहा तो ई एल्किन बनेगा। ओके, अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कीमो सेलेक्टिविटी की। कीमो सेलेक्टिविटी ये भी जरूरी है ना, कीमो सेलेक्टिविटी अब क्या होता है ये मैंने आप लोग को ऑक्सीडेशन के लेक्चर में बता दिया, तो यहाँ मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ओके, देखिए हमारे पास कोई एल्डिहाइड है, यहाँ पास क्या है हमारा OR हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH, है ना, ये हमारा क्या है, कोई सबस्ट्रेट है। अब इसके साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, व्हीटिंग रिएक्शन कराना है हमें, है ना, PPH3 डबल बॉन्ड C CO2ET और यहाँ पास ले लिया हमने हाइड्रोजन और हीट। ओके, अब हमारे पास देखिए व्हीटिंग रिएक्शन क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ होता है। तो यहाँ पास एल्डिहाइड है, यहाँ पास क्या है, कीटोन है, और यहाँ पास क्या है, एल्डिहाइड है। तो अब मुझे बताइए व्हीटिंग रिएक्शन जो होगा वो किसके साथ पहले रिएक्शन करेगा, मतलब किसके साथ होगा। अगर दोनों एक ही सब्जेक्ट में दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तो किसके साथ रिएक्शन होगा, जो मोर रिएक्टिव होगा उसके साथ जो है व्हीटिंग रिएक्शन जो है होगा। ओके, तो मोर रिएक्टिव कौन सा है, एल्डिहाइड जो है क्या है, मोर रिएक्टिव है, कीटोन जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। ये भी मैंने आप लोग को बता दिया है ना, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो रिएक्शन किसके साथ होगा, एल्डी के साथ होगा, कीटोन के साथ नहीं होगा। अगर एक ही सबस्ट्रेट में दोनों ग्रुप प्रेजेंट है तब की बात कर रहा हूँ, तब हम क्या देखेंगे, कीमो सेलेक्टिविटी देखेंगे, है ना। तो कीमो सेलेक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रेटर देन कीटोन। तो इसे ध्यान रखिएगा। अब ये मत कीजिएगा कि दोनों के साथ करा दीजिए, है ना, दोनों के साथ नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, एल्डिहाइड के साथ होगा अगर दोनों कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट है, दो, है ना। अब चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल है व्हीटिंग रिएक्शन से, जिसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग खुद से ट्राई करो, कुछ नहीं है, सिंपल सा मैकेनिज्म आपको नहीं बताना है, सिर्फ आपको पहचानना है कि स्टेबलाइज्ड हैलाइड है कि नॉन स्टेबलाइज्ड हैलाइड है। उसके बाद आप लोगों को क्या कराना है, रिएक्शन करा देना है। ओके, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पास क्या है, BR ग्रुप है, ये क्या है, अल्फा हेलो एस्टर, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है। अब देखिए यहाँ पास क्या किया है, पहले हमें क्या करना है, व्हीटिंग रिएजेंट जनरेट करना है। तो BR लिविंग ग्रुप है, PPH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, BR पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा SN2 रिएक्शन के थ्रू। तो हमारा क्या बनेगा, देखिए PPH3 यहाँ आ जाएगा, ओके, और C डबल बॉन्ड O और OET, ये क्या है हमारा एस्टर, है ना। तो यहाँ पास P पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास निगेटिव चार्ज, और यहाँ पास हाइड्रोजन है ना। ये हमारा मिल गया फर्स्ट रिएजेंट से। अब सेकंड हमें क्या दिया है, NaH दिया। NaH क्या है, सोडियम हाइड्राइड क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को अपटेक कर लेगा,
ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा जब इस प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो PPH3 निगेटिव, यहाँ पास पॉजिटिव, ओके, और C डबल बॉन्ड O और OET। ये हमारा बन गया क्या। अब बताइए यहाँ पास क्या है, एस्टर है ना, एस्टर है ना। एस्टर किस में आएगा, स्टेबलाइज हैलाइड में। और हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ पास, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड O और H। अब स्टेबलाइज हैलाइड है तो क्या बनाना है हमें, क्या बनाना है, स्टेबलाइज हैलाइड है तो यहाँ ई एल्किन बनाना है, तो ई एल्किन बना दीजिए। किसी भी तरह का मैग्नीशियम को जरूरत नहीं है यहाँ पास, सीधा ई एल्किन बना दीजिए। अब वैसे सेकंड में देखिए यहाँ पास कौन कौन सा ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल ग्रुप दे दिया है ना, एमी और एमी। ओके, चलिए यहाँ पास ET ले लेते हैं, है ना। यहाँ पास भी नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये क्या है हमारा, नॉन स्टेबलाइज्ड हैलाइड। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखिए किसी भी तरह का मैग्नीशियम का जरूरत लग रहा है कि आप ही लोग बताइए, किसी भी तरह का मैग्नीशियम का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये लाइट का बस को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है, सेकंड में एस्टर भी दिया है और एल्डिहाइड भी दिया है। तो किसके साथ रिएक्शन फास्ट होगा, किसके साथ वीटिंग रिएक्शन, किसके साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए PPH3 और यहाँ का O तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए CO2 ET, यहाँ पास हाइड्रोजन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पास क्या है, एमी और ET है। ओके, पीरियोडिक सीक्वेंस दे दीजिए, लार्ज ग्रुप इधर, फर्स्ट पीरियोडिटी इसको, सेकेंड पीरियोडिटी हाइड्रोजन, फर्स्ट पीरियोडिटी इथाइल और सेकेंड पीरियोडिटी मिथाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पास तो जेड बन जाएगा ना, हाँ तो जेड ही तो बनेगा। अरे भाई जेड ही तो बनेगा, क्यों, नॉन स्टेबलाइज्ड हैलाइड है तो ठीक तो है ना। 2 क्या हो गया, एक दूसरे के सीन है, तो क्या होगा हमारा, जेड एल्किन बन जाएगा। वैसे यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास भी सेम रिएक्शन है ना। यहाँ पास क्या है, ये क्या है, R- क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब एल्काइल क्या है, किस में आएगा, नॉन स्टेबलाइज्ड हैलाइड में। तो यहाँ पास भी क्या करो, सेम क्या करो, यहाँ पास भी R- हाइड्रोजन और यहाँ पास R- और ये हाइड्रोजन। पीरियोडिक दीजिए फर्स्ट सेकेंड, तो ये भी क्या बन गया हमारा, जेड एल्किन। किसी भी तरह का मैग्नीशियम को जरूरत नहीं है, बताओ है क्या, मैग्नीशियम को जरूरत नहीं है ना। बस आपको देखना है स्टेबलाइज हैलाइड, नॉन स्टेबलाइज हैलाइड, है ना। और एक जगह बस था वो सोसलर मॉडिफिकेशन, उसमें आप लोग को ई बनाना है। ओके, अब चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रामोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन। ओके, अब चलिए हम लोग देखते हैं इंट्रामोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, वीटिंग रिएक्शन। ओके, अब इसमें क्या होगा, मतलब जो सबस्ट्रेट रहेगा उसी में क्या दे दिया रहेगा, वीटिंग रिएजेंट भी प्रेजेंट रहेगा, है ना। और क्या होगा उसमें, साइक्लिक जो है वो फॉर्मेशन होगा। अब देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर CH2 ले रहा हूँ, CH2 और यहाँ पास आ गया हमारा निगेटिव। ओके, अब हमें क्या कराना है, वीटिंग रिएक्शन कराना है। जैसे हम लोग हीट ले लेते हैं, है ना, हीट कंडीशन। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है हमारा, वीटिंग रिएक्शन है। ये क्या है हमारा, कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ग्रुप है या फिर उसका डेरिवेटिव है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सा रिएक्शन करना है। PPH3 और CO को क्या करो, बाहर कर दो, इस PPH3 और EaCO को।
ओके, आउट कर दो। मैकेनिज्म सेम होगा ना, इसके पहले में जो मैं बताया सेम मैकेनिज्म होगा। और यहाँ पास क्या करो, इस सी के साथ और इस के साथ डबल बॉन्ड बना दो, है ना। तो कितना मेंबर रिंग बना हमारा, 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, 4 ही मेंबर तो रिंग बना ना अपना। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पास हम लोग स्मॉल रिंग होता है उसमें तो जेड नहीं बना सकते, वो तो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा ई प्रीफर करता है। हाँ, तो हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। ये हमारा बन गया 4 मेंबर रिंग। अब बात आती है जेड की जगह पे हम लोग और कौन कौन सा ग्रुप ले सकते हैं। अगर देखिए जेड की जगह पे हम लोग क्या ले लें, हाइड्रोजन ले ले, तो हमारा क्या बनेगा, वो एल्डिहाइड होगा, है ना। इस जेड की जगह पे हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड होगा। अगर आर ले लेंगे तो कीटोन हो जाएगा। OMe ले लेंगे तो एस्टर हो जाएगा। यही सब तो है। Cl ले लेंगे तो एसाइल हो जाएगा, है ना। पीएच लेंगे तो ये भी क्या होगा, बेंजल्डिहाइड हो जाए, बेंजल्डिहाइड टाइप, है ना। तो इस तरह से जेड जो है कोई भी ग्रुप यहाँ पास, ये सब में से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो इंट्रामोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस जो एक ही मॉलिक्यूल में जो हो रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में रिएक्शन हो रहा है। अगर 2 डिफरेंट कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होता तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कंपाउंड में जो है रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए हम लोग इंट्रामोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन, है ना। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग को, एग्जाम्पल से क्या होगा आप लोग को एंड क्लियरिटी जो है आएगा। ओके, तो ये देखिए इंट्रामोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल मैंने व्हाइट बोर्ड में ड्रॉ किए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पास इस एग्जाम्पल में देखिए, है ना। सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बन रहा है तभी सॉल्यूशन को देखिएगा। ओके, यहाँ पास क्या है, हमारे पास PPH3 दिया है और Et2O दिया है, और यहाँ पास क्या है, Br जो क्या है हमारा लिविंग ग्रुप है, ना। इससे पहले जो बताया, तो सबसे पहले क्या करो, वीटिंग रिएक्शन बनाना है हमें। यहाँ अटैक करेगा, Br को बाहर करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो HN2 रिएक्शन होगा ना। सबसे पहले ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ पास क्या होगा, PH का होल थ्राइस आ जाएगा, और यहाँ पास हाइड्रोजन। अब P पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 5 बॉन्ड हो गए। ओके, उसके बाद सेकेंड में क्या दिया है हमारा बेस, तो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अटैक कर लेगा और यहाँ पास निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। ओके, यहाँ पास निगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। उसके बाद थर्ड में हीट दिया है, तो हीट दिया है मतलब क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर वीटिंग रिएक्शन होगा। तो इस ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए, PPH3 को बाहर कर दीजिए, और ये जो कार्बन है इस कार्बन का और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बना दीजिए। तो कितने मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा ना। तो अब 5 मेंबर रिंग बनेगा, तो और ये 1 और 5 के बीच में क्या करना है आप लोग को, डबल बॉन्ड बना देना है, हाँ ना। तो ये क्या हो गया हमारा 5 मेंबर रिंग बना दीजिए, ये 5 मेंबर रिंग, और 1 और 4 के बीच डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, है ना। किसी भी तरह का मैकेनिज्म का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ वैसे ही सेम यहाँ पर सेकेंड में देखिए, है ना। इस सेकेंड पोजीशन में देखिए, यहाँ पास क्या है, हमें PPH3 दिया गया है और बेस दिया है। तो बेस सबसे पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा। ओके, अटैक करने के बाद क्या करेगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। उसके बाद निगेटिव चार्ज जनरेट करने के बाद देखिए ये क्या दिया है हमारा, एमाइड। तो इस PPH3 और इस ऑक्सीजन को बाहर कर दो, और इस कार्बन और इसके बीच क्या कर दो, डबल बॉन्ड जनरेट कर दो। तो यहाँ पास भी नंबर ही कर दीजिए, 1 2 3 4 5, है ना। 5 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड करना है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल सा है, आप लोग को किसी भी तरह का मैकेनिज्म का कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड आएगा, है ना। 5 मेंबर रिंग बन रहा है ना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रहा है। तो 5 मेंबर रिंग बनाएंगे तो यहाँ पास हो गया C,
ओके, उसके बाद 4 में क्या है हमारा, नाइट्रोजन और उसके साथ हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड कर दीजिए, तो ये हमारा प्रोडक्ट होगा। सिंपल सा है, कोई भी किसी भी तरह का आप लोग को जो है मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलिए एक और एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग एग्जांपल को स्टडी कीजिए। PPH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पास आ गया OMe एस्टर। ओके, pH Ame दिया है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने को बोला गया है। अब देखिए यहाँ पास भी क्या है, वही तो है, सिंपल सा ना। क्या करो, इस ऑक्सीजन को, इस PPH3 को बाहर करो और इस कार्बन और इसके बीच क्या करो, रिंग का फॉर्मेशन कर दो। 1 2 3 4 5, यहाँ पास भी क्या बनेगा, 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो 5 मेंबर्ड, 5 नहीं 1 2 3 4, हाँ 5 ही तो बनेगा ना। 5 मेंबर्ड ही बनेगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करो, है ना। तो जैसे अगर इसको 1 ले रहा हूँ, 2 3 4 5, है ना। 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड, और 5 में क्या जुड़ा है, OMe जुड़ा है, तो OMe को सेम ही रहने दीजिए, है ना। यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा उसे हमें क्या करना है, चेंज नहीं करना है। ओके, और 3 और 4 में क्या है, 3 में अबव में ऑक्सीजन है, 4 में बिलो में ऑक्सीजन है, और ये हमारा कंपाउंड है। ओके, तो ये हमारा बन गया प्रोडक्ट, सिंपल सा, है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरह का आपको जो है मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आप लोग को मैकेनिज्म को डिटेल में करा दिया है ना। तो ये हमारा हो गया बीटिंग रिएक्शन। है ना। अब चलिए मैं आप लोग को कुछ होमवर्क देता हूं जिससे आप लोग को खुद से ट्राई करना है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसे आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, सिर्फ वही कॉन्सेप्ट लगाना जो मैंने बताया, स्टेबलाइज्ड, नॉन स्टेबलाइज्ड, एलाइड, बस आपको आइडेंटिफाई करना है ना। देखिए फर्स्ट में क्या दिया है, हमारे पास बेस दिया है। बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, है ना। और ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का सीन का देखिए, यहाँ पास PPH3 हम लोग लेते थे ना, तो यहाँ पास क्या किया है उसने, PPH3 नहीं दिया है। PPH3 की जगह पे ये ग्रुप जो है क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सिंपल इसको बाहर करो, या इसमें ऑक्सीजन को बाहर करो और रिएक्शन करा दो। ये क्या है, स्टेबलाइज्ड एलाइड है। स्टेबलाइज्ड एलाइड है तो E बनेगा। इसमें भी CO2 एस्टर है, स्टेबलाइज्ड एलाइड है। स्टेबलाइज्ड एलाइड है तो E बनेगा। इसमें भी सेम क्या है, एस्टर है, स्टेबलाइज्ड एलाइड है, तो स्टेबलाइज्ड एलाइड है तो E बनेगा इसमें भी, है ना। किसी भी तरह का मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हार्मर वर्थ इमोन्स रिएक्शन। ओके, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता होमवर्क वाला तो कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।